And while 9 have been reported dead in the Gujarat bridge collapse, we are learning that rescue operations are underway after those cars that plunged into the river when the bridge crumbled. 9 people have been reported dead. Several vehicles that fell into the Mahi Sagar river after a section of the Gambhira Mujpur bridge in Padra Taluka of Gujarat's Vadodara had collapsed. The bridge that connects the Anand and Vadodara districts gave way during peak morning traffic hours, resulted in fatalities and injuries. 9 people have been reported dead so far, as per what we are learning. 4 vehicles, including 2 trucks, a Bolero SUV and a pickup van, were crossing the bridge when it suddenly just crumbled in the middle of nowhere, and all those vehicles that fell into the river. Eyewitnesses said that there was a loud cracking noise that was heard moments before the vehicles dropped into the river. Fire brigade teams, local police, members of the Vadodara district administration all rushed to the spot and launched immediate rescue operations that are currently underway. The locals also joined in. They helped in extracting the injured from the wreckage. 9 people have been reported dead so far, where several were taken to the hospital but unfortunately succumbed to their injuries. The authorities have cordoned off this entire area to prevent further accidents, and a probe that has also been initiated to find out the cause of the bridge collapse. Locals allege that the bridge, that is key artery linking central Gujarat to Saurashtra and vital for commuters between Anand, Vadodara, Bharuch and Ankleshwar, had long been neglected by the administration, is what the locals are alleging. In fact, they've also gone on to say how Gambhir Bridge had become notorious not just as a traffic hazard but also as a point where accidents were bound to happen, and repeated warnings about its condition were ignored. That has led to this catastrophe. Let me cut across to Atul Tiwari joining us live with the latest on the rescue operations that are underway, the challenges that the rescue teams face, and unfortunate as the number of casualties have now mounted to 9. Atul? देखिए, जिस प्रकार से अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन की अगर बात करें तो वडोदरा के कलेक्टर की तरफ से जो बयान दिया गया है उसके मुताबिक अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 6 लोगों को अब तक रेस्क्यू किया गया है। इनमें से 2 लोगों को एसएसजी अस्पताल यानी वडोदरा में रेफर कर दिया गया है। जिस प्रकार से कलेक्टर के साथ बातचीत हुई है और उनका कहना है कि एक ट्रक और एक पिकअप व्हीकल अभी भी नदी के अंदर फंसे हुए हैं, क्योंकि बीते 1 महीने से गुजरात के अलग अलग हिस्सों में जिस प्रकार से बारिश हो रही है तो ये जो पुल था जो कि महिसागर नदी के ऊपर बना था और नदी के अंदर भी अभी पानी है, जिसकी वजह से एक ट्रक और एक पिकअप व्हीकल ये फंसे हुए हैं और इनको निकालने का जो कामकाज है वो जारी है। जिस प्रकार से पहले ही एक जानकारी आई थी कि पिकअप व्हीकल के अंदर कुछ लोग थे जो कि आनंद से वडोदरा की तरफ जा रहे थे और जब ये ब्रिज बीच में से टूटा तो पिकअप व्हीकल टूटा जिसमें लगभग 7 से 8 लोग सवार थे और अब तक जिस प्रकार से 9 लोगों की मौत की पुष्टि भी हो गई है। 2 लोग जिनकी स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें एसएसजी अस्पताल वडोदरा में रेफर किया गया है। यानी कि ये भी शायद अंदाजा लग पा रहा है कि अभी भी ये मौत का जो आंकड़ा है ये बढ़ भी सकता है, क्योंकि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी है। एक ट्रक फंसा हुआ है, एक पिकअप व्हीकल भी अब तक फंसा हुआ है। लेकिन इस ब्रिज की जो भी अब तक की इंफॉर्मेशन सामने आ रही है उसके मुताबिक 1981 में इस ब्रिज को बनाने का जो कामकाज था वो शुरू हुआ था। 1985 से ये ब्रिज जो है वो व्हीकल्स के लिए ओपन यानी कि खोला गया था। तब से लगातार ये ब्रिज पर भारी व्हीकल्स की आवाजाही लगातार चालू रही है। मध्य गुजरात के लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण ब्रिज है, न सिर्फ वडोदरा से आनंद लेकिन दक्षिण गुजरात में यानी कि सूरत हो, नवसारी, वलसाड़, तापी, भरूच इन जिलों में भी जाने के लिए ये ब्रिज काफी महत्वपूर्ण था। ऐसे में बीते 1 साल पहले इस ब्रिज का जब स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी आया था उसके बाद इस ब्रिज को रिपेयरिंग किया गया था, लेकिन रिपेयरिंग के बाद अब इस ब्रिज पर आज सुबह 8:30 बजे ये हादसा हुआ।
23 स्पान इस ब्रिज पर हैं। इसमें से बीच का एक स्पान टूट गया जिसमें 5 जितने व्हीकल जो कि महिसागर नदी के अंदर गिर गए और जो 9 लोगों की मौत है इस ब्रिज हादसे के अंदर अब तक हो चुकी है। लेकिन सरकार की तरफ से कहा गया है कि 3 महीने पहले ही एक नया ब्रिज बनाने के लिए 212 करोड़ रुपए को मंजूरी राज्य सरकार की तरफ से दी गई है। इस ब्रिज के जगह पे दूसरा ब्रिज बनाने के लिए जो डिजाइनिंग का काम और टेंडरिंग की जो प्रक्रिया करनी है इसको लेकर जो कामकाज था वो जल्दी शुरू होने वाला था, लेकिन नए ब्रिज को टेंडरिंग की प्रक्रिया पूर्ण होती, नया ब्रिज बनना शुरू होता उसके पहले जो 40 से भी अधिक साल पुराना ये ब्रिज है जो कि टूट गया। स्थानीय लोग लगातार दावा कर रहे हैं कि काफी विरोध प्रदर्शन उन्होंने इस ब्रिज को लेकर किए थे। जब भी हैवी व्हीकल्स इस ब्रिज से जाते थे तब पूरा ब्रिज वाइब्रेट होता था। ब्रिज के ऊपर कई खड्डे भी थे। लगातार इस ब्रिज को रिपेयर कर इस ब्रिज को शुरू रखा गया था। स्थानीय लोगों की यह भी कहना है कि भारी व्हीकल की आवाजाही रोकने के लिए भी कई बार विरोध प्रदर्शन उनकी तरफ से किए गए, लेकिन जो हैवी व्हीकल्स हैं उनकी आवाजाही इस ब्रिज से नहीं रोकी गई और आखिरकार आज सुबह 8:30 बजे ये लगभग 40 साल से भी अधिक पुराना जो ब्रिज है 23 स्पान का, उसमें से एक बीच वाला स्पान टूट गया और इसमें 5 से ज्यादा व्हीकल जिसमें 2 ट्रक, एक पिकअप व्हीकल और एक रिक्शा समेत जो व्हीकल्स हैं वो शामिल हैं और अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 6 लोग इसमें अब तक इंजर्ड भी हैं और लगातार विपक्ष की बात करें तो विपक्ष की तरफ से भी सरकार को घेरने की time and again lives are lost to such negligence, and why is it that the authorities don't act on time?